গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এবাৰ আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে। এবাৰ কংগ্ৰেছে উভতি ধৰিলে কিয়নো কিছু সময় পূৰ্বে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে এক মন্তব্য কৰিছিল যে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু জনতাই একগোট হোৱা উচিত বা একত্ৰিত হোৱা উচিত। আৰু এই মন্তব্য কংগ্ৰেছে উভতি ধৰি তেওঁলোকে ক'লে যে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ হিন্দুসকলক একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু ভাৰতত থকা সংখ্যালঘুসকলক একত্ৰিত হোৱাটো নিবিচাৰে বিজেপিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বাংলাদেশত হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কৈ ভাৰতৰ সংখ্যালঘুক একত্ৰিত হোৱাটো নিবিচাৰে। ভাৰতৰ সংখ্যালঘু একত্ৰিত হ'লে আপত্তি কিয় হয় আৰএছএছৰ? আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ নেতা পৱন খেৰাৰ। ভাৰতত সংখ্যালঘু একত্ৰিত হ'লে হিন্দু সংকটত দেখা পায় আৰএছএছে। বিশ্ব হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কয়, কিন্তু ওৱেচিয়ে পেলেষ্টাইনৰ কথা ক'লে আপত্তি কৰে। মোহন ভাগৱতক এবাৰ উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে। আৰু কংগ্ৰেছে এবাৰ উভতি ধৰিলে মোহন ভাগৱতক। দেশত একতা নিবিচৰা দলক কিয় সমৰ্থন কৰে মোহন ভাগৱতে? কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ প্ৰশ্ন আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত। দশমীৰ দিনাই বাংলাদেশৰ হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কৈছিল মোহন ভাগৱতে। বাংলাদেশত হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কৈ ভাৰতৰ সংখ্যালঘু একত্ৰিত হোৱাটো নিবিচাৰে আৰএছএছে বুলি এবাৰ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে। ভাৰতৰ সংখ্যালঘু একত্ৰিত হ'লে আপত্তি কিয় হয় আৰএছএছৰ? আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ। ভাৰতৰ সংখ্যালঘু একত্ৰিত হ'লে হিন্দু সংকটত দেখা পায় আৰএছএছে এনেধৰণৰ এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। বিশ্বৰ হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কয়, কিন্তু ওৱেচিয়ে পেলেষ্টাইনৰ কথা ক'লে আপত্তি হয়। মোহন ভাগৱতক এইবাৰ উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো আজি বিজয়া দশমীত অস্ত্ৰ পূজনৰ সময়ত আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে বাংলাদেশ আচলতে পাকিস্তানক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰে, বা পাকিস্তানে বাংলাদেশীসকলে পাকিস্তানৰ পক্ষলৈ ভাৰত বিৰোধী চক্ৰ এটা তেওঁলোকৰ তাত গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে আক্ৰমণ কৰে। কিন্তু বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘুসকল একত্ৰিত হোৱা উচিত, হিন্দুসকলে একত্ৰিত হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে। লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ যিসকল হিন্দু লোক আছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগে বুলি যি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যক এবাৰ পৱন খেৰাই উভতি ধৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ মন্তব্য যে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুক একত্ৰিত হ'বলৈ কয়, কিন্তু ভাৰতত সংখ্যালঘু মুছলমানসকলে তেওঁলোকে একত্ৰিত হ'লে ওৱেচিৰ একত্ৰিত হ'লে প্ৰশ্ন তোলাই আৰএছএছে হিন্দু সংকটত পৰিছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে। আৰু এই সম্পৰ্কত এবাৰ কি কি মন্তব্য দিলে পৱন খেৰাই, আমি সেই মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहाँ तो माइनॉरिटीज़ को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहाँ तो माइनॉरिटीज़ को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया মন্তব্য পৱন খেৰাৰ মন্তব্য। এবাৰ আমি আপোনালোকক আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ সেই মন্তব্যটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি মোহন ভাগৱতৰ সম্পৰ্কত আমি
লাইভৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মোহন ভাগৱতে কেনেদৰে বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ টানি আনি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু একত্ৰিত হ'ব লাগে, বিশ্ব সমগ্ৰ হিন্দু একত্ৰিত হ'ব লাগে বুলি যিটো মন্তব্য কৰিছিল RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ, সেই মন্তব্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া আছিল পৱন খেৰাৰ মন্তব্য। আচলতে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে পুৱাৰ ভাগত যিটো মন্তব্য দিছিল, এই মন্তব্যটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেদৰে দিছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই। পৱন খেৰাই উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে বিশ্বৰ হিন্দুসকলক একত্ৰিত ক'বলৈ কৈ ঠিকেই আছে, বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলক একত্ৰিত বা মাইনৰিটিসকলক একত্ৰিত ক'বলৈ কৈ সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু ভাৰতত যেতিয়া সংখ্যালঘুসকল সংকটত থাকি তেওঁলোকে একত্ৰিত হয় তেতিয়া RSSে প্ৰশ্ন কিয় কৰে বা হিন্দু সংকটত পৰিছে বুলি কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বা কিয় ভাবি লয়। এবাৰ আমি পুনে পুনে আপোনালোকক মোহন ভাগৱতৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইটটো আছে, মোহন ভাগৱতৰ বাইটটো আছে। ৰাতি অলপ আগতে গৈছিলোঁ লাইভটো মোহন ভাগৱতৰ। कि उनकी वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। हम अगर संघ समर्थित भाजपा की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं तो हम उस तरह की पॉलिटिक्स, कोई भी जो धर्म को आगे रख के पॉलिटिक्स करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, हम बार बार ये कहते हैं। वो तो उनसे पूछिए कि उनकी वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। हम अगर संघ समर्थित भाजपा की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं तो हम उस तरह की पॉलिटिक्स, कोई भी जो धर्म को आगे रख के पॉलिटिक्स करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, हम बार बार ये कहते हैं। वो तो उनसे पूछिए कि उनकी वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म। सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए
और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है?